اور خبر تفصیل سے بلند شہر تشدد میں انسپکٹر سبودھ کمار سنگھ قتل معاملے میں کلیدی ملزم پرشانت نٹ نے پولیس کی پوچھ تاچھ میں قبول کیا ہے کہ اس نے سبودھ کمار سنگھ پر گولی چلائی تھی۔ پوچھ تاچھ میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ سبودھ کمار سنگھ پر پہلے کلہاڑی سے حملہ کیا گیا اور ان کو جلانے کی کوشش بھی کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق انسپکٹر سبودھ کمار سنگھ کو انہی کی ریوالور سے گولی ماری گئی تھی۔ گولی مارنے سے پہلے ان کے سر پر کلوا نامی ایک اور ملزم نے کلہاڑی سے حملہ کیا تھا، اس کے ساتھ ہی ان کا انگوٹھا بھی کاٹا تھا۔ میں کوتوال صاحب مجھ کو جانتے تھے، میرا پریچہ تھا ان سے۔ کوتوال صاحب کو میں جو ان کی تھوڑی چوکی کے سامنے پھوٹ چکی تھی، ٹرک والا کھڑا تھا ریت کا، وہاں پر اس کے سہارے آئے تھے، وہیں پہ میں کھڑا تھا الٹ میں، شانے میں سے پتھراؤ چل رہا تھا وکٹ۔ پھر میں انہوں نے ٹولے کے دھوڑے سے اپنے گاؤں کی طرف لے جا رہا تھا، لے جانے کے بعد میں سمت نے روڑا مارا، روڑا کوتوال صاحب کا لگ گیا، لگنے کے بعد میں کوتوال صاحب نے مارا، کسی اور کا جائے کا لگا۔ لگنے کے بعد میں پھر اپنے گاؤں کی طرف کو لے رہا، نالی ایک نالی پڑتی ہے، نالی کودتے کے خین سمت سب میں آ گیا، پتھراؤں میں سمت سب میں آ گیا تھا۔ پھر جو نالی کودتے کے خین کوتوال صاحب نے سمت کو گولی مار دی تھی، سمت موقع پہ وہیں گر گیا۔ گرنے کے بعد میں اپنے گاؤں کی طرف سے لے آ رہا ہوں، دوسرے کھیت میں باڑ دیا میں لے جا کر کے، ایک دیوار پڑتی ہے، دیوار کے پیچھے سے یہ پرشانت آیا، پرشانت نے دونوں ہاتھوں سے گولی بھر لی۔ گولی بھرنے کے بعد میں پبلک ایک دم ٹوٹ پڑی، پبلک نے وہ پتھر اور لٹھوں سے انہیں مارنے کے بعد میں وہ جب ہی نیچے گر گئے تھے، ان نے پرشانت نے چھین کر کے لیوار پر اس کے گولی مار دی۔ آپ کے سامنے چھینی تھی پرشانت نے پسٹل پرشانت نے چھینی تھی، چھین کر کے گولی مار دی۔ آپ کے سامنے گولی ماری تھی انسپکٹر صاحب؟ میرے سامنے گولی ماری تھی سر۔ پھر پسٹل کہاں پھینکی تھی؟ پسٹل ہوئی گیر دی تھی، ایک یہ لے جا رہا تھا، اس نے بولا پسٹل کو ہی۔ نوئیڈا کے سیکٹر 58 کے پارک میں آج جمعے کی نماز ادا نہیں کی گئی۔ پولیس نے پارک میں کسی بھی مذہبی کارروائی کو روکنے کے لیے پانی بھر دیا تھا اور صبح ہی سے پولیس کا پارک میں پہرا رہا۔ نوئیڈا میں عوامی مقامات میں نماز ادا کرنے کو لے کر تنازع کہیں بڑھ نہ جائے، اس کی وجہ سے نوئیڈا پولیس اور انتظامیہ نے پارک کو پانی سے بھر دیا۔ پولیس یہ یقینی بنانا چاہتی تھی کہ وہاں کوئی مذہبی پروگرام نہ ہو اور نہ ہی نماز ادا کی جا سکے۔ واضح ہو کہ نوئیڈا کے سیکٹر 58 میں اتھارٹی کی جس پارک میں نماز اور دوسری طرح کے مذہبی پروگرام کے لیے نوئیڈا پولیس نے کمپنیوں کو نوٹس بھیجا تھا، اس پارک میں صبح سے ہی پولیس کا پہرا رہا۔ جمعے کی وجہ سے نمازیوں کے اکٹھا ہونے کا اندیشہ تھا، اس لیے پورے پارک میں پانی بھر دیا گیا۔ غورطلب ہے کہ اس سے پہلے اتر پردیش پولیس نے دفتروں اور اداروں کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے ملازمین کو عوامی مقامات جیسے کہ پارکوں میں جمعے کی نماز پڑھنے سے روکیں۔ یو پی پولیس کی ہدایت کو جانکاری میں لیتے ہوئے نوئیڈا پولیس کے مختلف تھانوں میں پچھلے ہفتے ایک نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اگر نوئیڈا سیکٹر 58 میں واقع انڈسٹریل ہب کے دفتروں کے ملازم پبلک پلیسز میں نماز پڑھتے پائے گئے تو اس کے لیے ادارے کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا اور اسی پر کارروائی کی جائے گی۔ بتا دیں کہ نوئیڈا کا سیکٹر 58 بنیادی طور پر ایک آئی ٹی اور سروس سینٹر ہے۔ نوئیڈا پولیس نے اس کی حمایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے 2019 کے لوک سبھا انتخابات کے دوران فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے مد نظر ایسی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ منگل کو سیکٹر 58 کے اتھارٹی پارک میں نماز پڑھنے پر روک کے بعد بدھ کو سیکٹر 37 میں پولیس نے سختی دکھاتے ہوئے بھگوت کتھا کے انعقاد کو روک دیا تھا، جس کے بعد خواتین کیرتن کرنے لگی تھی۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ ایک جانب جہاں نوئیڈا کے سیکٹر 58 کے پارک میں نماز کی ادائیگی کو روکنے میں پولیس کامیاب رہی، وہیں دوسری جانب تقریباً 200 لوگوں نے سیکٹر 63 کے ایک پارک میں نماز جمعہ ادا کی، حالانکہ اس پر ابھی تک کوئی تنازع نہیں ہوا ہے۔ دہلی اور اتر پردیش میں NIA کی جانب سے داعش کی طرز پر ہندوستان میں ماڈیول بنانے کے الزام میں گرفتار ملزمین کی قانونی مدد کے لیے جمعیت علماء ہند آگے آئی ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر ارشد مدنی کے مطابق جمعیت ان نوجوانوں کے کیس لڑے گی۔ مولانا ارشد مدنی نے NIA کی کارروائی پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کو دیکھتے ہوئے یہ کارروائی کی گئی ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ مذہب کی بنیاد پر ووٹوں کی سیاست ناکام ہونے کے بعد مرکز نے اب دہشت گردی کا حربہ استعمال کیا ہے۔
ISIS मॉड्यूल को लेकर के NIA ने जो रेड की है उसमें जो 10 मुस्लिम बच्चे पकड़े गए हैं उनका केस जमीयत उलमा लड़ेगी। मौलाना अरशद मदनी हमारे साथ हैं। मौलाना, क्या लगता है, आप लोग केस लड़ रहे हैं, इन लोगों को फंसाया गया है, कुछ ऐसा आप लोग को मिला है कि आप सीधे जो है केस लड़ने चले गए? नहीं, हमें अभी तक कुछ भी नहीं मिला है हकीकत है या नहीं है ये तो कोर्ट का काम है, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि आज तक इस तरह की कोई कितने केस हो चुके हैं और होते रहते हैं मुल्क के अंदर, और जो रवैया आज पुलिस का या खुफिया एजेंसियों का है और उसके साथ जो मीडिया का रवैया है वो कोई नया नहीं है, जो हमेशा होता है वही आज भी हो रहा है। लेकिन हम केस लड़ रहे हैं और हम जानते हैं कि 10-20 केस ऐसे हैं कि उसके अंदर किसी को लोअर कोर्ट से, किसी को हाई कोर्ट से, किसी को सुप्रीम कोर्ट से बाइज्जत बरी कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि जो राई का पहाड़ बनाया गया था वो सब फर्जी था, उसकी कोई हकीकत नहीं थी, वरना बाइज्जत बरी कैसे हो गए। आज भी जिस केस को पेश किया जा रहा है उसकी कितनी हकीकत है ये कल को पता चलेगा। हम इस बुनियाद के ऊपर कि इससे पहले इस तरीके के केस गलत साबित हो चुके हैं और होते रहे हैं। बड़ी रकम 7 लाख रुपए की तो बड़ी रकम नहीं है। आजकल तो छोटे छोटे कारोबार करने वाले 10-10, 15-15 लाख का कारोबार करते हैं। अगर उन्होंने 7 लाख, इसकी कोई अहमियत नहीं रह गया। लांचर क्या चीज़ है, वो जिसको लांचर कह रहे हैं लोग, ये भी वो कह रहे हैं कि साहब हम काश्तकार हैं, हमारे यहाँ वो फूकने की तरीके पर कोई सामान रखा हुआ था, उसको उठा करके उन्होंने लांचर बना दिया। ये हमेशा होता है, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते हैं फसादात कराए जाते हैं, लुटवाया जाता है, और एक तबका है जो ये समझता है कि वोटों की तकसीम का सिलसिला इसी तरीके पर हो सकता है। लिहाजा कि हो सकता है, मैं कहता हूँ कि इसका खतरा है कि आने वाले दिनों के अंदर इलेक्शन तक इस तरीके के वाक़यात और बढ़ें, और मुसलमान को उसके लिए तैयार रहना चाहिए। हमसे दरख्वास्त की है तहरीरी तरीके के ऊपर, जो उसका दस्तूर है और जिस तरीके के ऊपर उनकी तरफ से तहरीर होनी चाहिए, कुछ आई हैं तहरीरें और हम उसका जिनकी तहरीरें आएंगी हम उनके केस कर लेंगे। ऐसा होता है कि जब केस आखिर तक पहुंचता है तो उस जज का तबादला कर दिया जाता है। अब दूसरा जज आ गया, वो फिर अलिफ बेते से शुरू कर देता है। जब वो सुनते सुनते किनारे पर पहुंचा तो उसका तबादला कर दिया। ऐसे केस पड़े हुए, हम तो इस तरह की मुसीबतों के अंदर फंसे हुए हैं। बहुत शुक्रिया। तो मौलाना अरशद मदनी ने साफ तौर पर NIA के रेट पर तो सवाल खड़ा किया है, लेकिन कहा है कि कोर्ट को फैसला करना है असल हकीकत क्या है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन के मद्देनज़र फसादात के कराए जाते हैं और इसी के साथ साथ दहशतगर्दी की इल्ज़ाम में भी लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। AIUDF के सदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने तलाक़ सलासा बिल पर लोकसभा में बहस के दौरान सलफी मसलक को लेकर दिए गए बयान पर अफसोस का इजहार किया है। न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत में बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि BJP रुकने पार्लियामेंट मीनाक्षी लेखी की वजह से उनकी जुबान से वो बात निकल गई जो कहना नहीं चाहते थे। बदरुद्दीन अजमल ने वाज़ेह किया कि सलफी मसलक का दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से कोई लेना देना नहीं है और वो अपने बयान के लिए माफ़ी मांगते हैं। कल लोकसभा में फिर से ट्रिपल तलाक बिल पास हो गया। मौलाना बदरुद्दीन अजमल हमारे साथ हैं। कल मौलाना ने जब बहस हो रही थी तो बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की और कई तरह के बयान भी दिए। मौलाना खुद हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। एक तरह का बयान भी कल आपने दिया जिसको लेकर के आपने हालांकि बाद में काफ़ी बातें कही भी हैं। क्या कहना चाहते थे आप और वहाँ पर क्या हो गया? असल में देखिए, ट्रिपल तलाक के ऊपर जब मैं बहस कर रहा था तो वो मोहतरमा क्या नाम है, मीनाक्षी, उसने बीच में बोलना शुरू किया। तो हालांकि मेरा 10 साल हो गया, इतने तजर्बे में मुझे भी इससे बड़े बड़े रुकावटें पहले आई है, कभी भी हमने उनको इग्नोर किया। ठीक है, हम आपसे बाद में बात करेंगे, जो अपनी मौजू की बात है वो हम करते रहे। लेकिन वो भी बहुत ऊंची कलाकार है और वकील है और BJP के स्पोक्स पर्सन है। तो उसने बहरहाल बदनसीबी मेरी कि उसने उसके बातों में मुझे उलझा लिया, और जो बात मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। 10 साल के रिकॉर्ड में कभी इस किस्म की कोई कंट्रोवर्सी, बल्कि 15 साल के पॉलिटिकल रिकॉर्ड में इस किस्म का कोई बयान कभी किसी से मेरा कहीं भी नहीं आया। लेकिन अच्छा, इस बात में कितनी सच्चाई है कि जो अहले हदीस तबका है
اس کے यहाँ से दहशतगर्दी की जड़ें पनपती हैं। देखिए पूरा मामला मैंने कहा कि भाई मेरे से गलती हुई और इस मामले में हमारे सल्फी भाई लोग जो है कोई इसका गलत तासुर न लें। हमने इसी बीच में आज ही मैडम स्पीकर को लिख के दे दिया कि उसको रिकॉर्ड से डिलीट कर दिया जाए और हमारे पास इत्तला भी आ गई कि वो रिकॉर्ड में नहीं आएगा। तो ये मेरे ख्याल से अहम ज़रूरी था, इसलिए मैं अपने सल्फी भाइयों से, हमारा रोज़गार उठना बैठना है, लोगों के साथ मिलना है, कारोबारी ताल्लुक भी है और पता नहीं बहुत से ताल्लुकात हैं, इसलिए किसी को भी अगर तकलीफ हुई है तो मैं उसको जो है अपनी इस बात से रुजू कर रहा हूँ और मुझे कोई इसमें शर्मिंदगी नहीं है। हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था और आइंदा भी नहीं होना चाहिए। तो ये थे मौलाना बदरुद्दीन अजमल, जिन्होंने कल जो पार्लियामेंट में बयान दिया था जिस पर तनाज़ा शुरू हुआ, उस ना सिर्फ उससे रुजू कर लिया है बल्कि उन्होंने साफ कर दिया है ट्रिपल तलाक का बिल मौजूदा शक्ल में किसी तौर पर भी उन्हें मंजूर नहीं है। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुल्क भर में इन दिनों 3 तलाक पर खूब बहस हो रही है। इस मामले पर खूब सियासत भी हो रही है। इन सब से परे हकीकत यह भी है कि मुस्लिम समाज में बैक वक्त 3 तलाक के गलत इस्तेमाल की मिसालें भी सामने आती रही हैं। ऐसी ही एक मिसाल चंद दिन कबल बेंगलुरु में पेश आई है, जहां शौहर ने व्हाट्सएप के जरिए बीवी को तलाक दिया है। बेंगलुरु की रेशमा अजीज और जावेद खान की इज़्दिवाजी जिंदगी तलाक पर खत्म होती दिखाई दे रही है। इसी माह की 4 तारीख को पेशे से डॉक्टर जावेद खान ने व्हाट्सएप के जरिए रेशमा को तलाक दे दिया। बेंगलुरु से ताल्लुक रखने वाले जावेद खान और रेशमा अजीज की शादी 11 जनवरी 2003 में हुई थी। बेंगलुरु में शादी के बाद दोनों अमेरिका में मुकीम थे। तकरीबन 15 साल गुजर जाने के बाद दोनों मियां बीवी में शदीद इख्तिलाफात पैदा हुए। To Mrs. Reshma Aziz. लाइक छोटे छोटे बातों से लाइक मेरे से खुश नहीं थे, लाइक मैं ये उनके हिसाब की नहीं, ये नहीं कर काफ़ी लाइक वो ये कर ले को थे, वो बहुत ही ड्रैग कर डाले उन्होंने वो बात को लेकर। तो इतना तक होगा कि पिछले 5 महीने इतना मुझे उस बारे में लाइक मेंटल टॉर्चर दी कि ये शादी से ज़बरदस्ती करे उनके बहन के वजह से, नहीं तो नहीं करता था मैं ये शादी, ऐसा बोल बोल को बहुत मुझे मेंटल हैरेस करे 5 जुलाई से लेके अब तक आने तक। एनसीपी रुकन पार्लियामेंट सुप्रिया सुले ने लोकसभा में तलाक सलासा बिल पर बहस के दौरान महाराष्ट्र के औरंगाबाद की नौमुस्लिम खातून हिना सरहान चाउश का हवाला देकर ऐवान में बिल की मुखालफत की, जिसके बाद हिना सरहान चाउश सुर्खियों में आ गईं। न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदे अजहरुद्दीन ने तलाक सलासा और मुस्लिम खवातीन के ताल्लुक से हुकूमत के रवैये पर हिना चाउश से तफसीली बातचीत की। हिना चाउश चूंकि खुद भी दाए इस्लाम है और खवातीन के मसाइल को लेकर वो काफ़ी सरगर्म है। हमारे साथ मोहतरमा हिना बिन माजी है, ये आज दाई इस्लाम है। इस्लाम के ताल्लुक से इनका क्या कहना है, आइए उनसे सुनते हैं। मैडम, इस्लाम को आपने कैसा पाया? और रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस्लाम एक यूनिफॉर्म सिस्टम वाला मजहब है जिसमें इंसान के लिए पूरे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। अगर आप इस्लाम की स्टडी करें तो आप ये बात जान सकते हैं। जैसा कि आज ट्रिपल तलाक को लेकर बहुत सारे मामले उठ रहे हैं कि ट्रिपल तलाक, जबकि अगर आप देखेंगे तो आप पूरा कुरान पढ़ेंगे तो आपको कहीं पे ट्रिपल तलाक मिलेगा नहीं। यानी एक वक्त में 3 तलाक देने का सिस्टम कुरान में कहीं भी नहीं है। कुरान बना ही इसलिए है कि मुसलमानों के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है कुरान पूरा ह्यूमन काइंड के लिए है। लेकिन हम खुद मुसलमान ही इसको नहीं समझते तो दूसरे क्या समझेंगे। आपकी सुप्रिया सुले से मुलाकात हुई थी, क्या बातचीत हुई? जी, ये तो मैं उनकी बहुत ज्यादा मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, क्योंकि उनकी वजह से शायद मैं यहाँ खड़ी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अल्लाह ताला ने उनको जरिया बनाया कि मैं आपके सामने ये सब रख सकूं। हम लोग अभी छुट्टियां थी बच्चों को, तो 4 दिन के लिए हम लोग बॉम्बे गए थे। हम शॉपिंग करते करते क्रॉफर्ड मार्केट से गुजर रहे थे, तो वो हमारे फ्रेंड्स थे, हमारे साथ फैमिली फ्रेंड, तो उनके साथ कुछ बातचीत कर रहे थे। और वो जो हमारे भाभी थे उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि ज़रा आप जल्दी आइए, थोड़ा बहुत इल्म रखती हूँ मैं इस्लाम के बारे में। तो उन्होंने मुझे बुलाया, इस्लाम की फील्ड में ही काम करती हूँ, दावत का काम करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो बोलना चाह रहे थे कि आप आओ यहाँ पर, सुप्रिया सुले है। तो फिर हम पहुंचे जाकर, तो फिर उन्होंने कहा कि आपके क्या ख्यालात है ट्रिपल तलाक के बारे में। और मेरे साथ उनकी बच्चियां भी थी, वो दोनों भी डॉक्टर्स थी, तो उन्होंने भी बात की है। तो ऐसा नहीं है कि मैं अकेली बात कर रही हूँ, ये बहुत सारे और भी औरतें हैं।
फिर उन्होंने बाद में पूछा कि क्या सिस्टम है, क्या नहीं है, इस्लाम क्या है, उन्होंने काफी कुछ पूछा और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो ग्राउंड लेवल पर आकर लोगों की राय जानने की कोशिश करी। यानी घर में बैठकर, एसी में बैठकर कुछ यही ऐसे यानी किधर से तो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और प्रैक्टिकली जो चीज नहीं करते हैं खास करके लोग, खास करके लीडर्स, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उनके साथ कोई भी नहीं था। खास बात तो ये लगी मुझे, यानी मैं उनकी पार्टी की कोई भी मेंबर नहीं हूं और ना ही मैं कोई भी पार्टी से मेरा कोई रिलेशन है, लेकिन वो जिस तरीके से मिली मुझे वो बहुत अच्छा लगा और मैं उनको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट जो है तो मुस्लिम खवातीन को इंसाफ दिलाने की बात कर रही है, इस पे क्या कहेंगे? ट्रिपल तलाक के बारे में इंसाफ दे रही है या उनकी फैमिली को तोड़ रही है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि फैमिली खत्म ही कर दे रही है। क्यों? तो अब मैं आपसे ही सवाल करूंगी कि भाई अगर ये जो तलाक का मामला है, कितने % लोग तलाक, मैंने जो डाटा कलेक्ट किए वहां तक के 23% लोग यानी डिवोर्स दिया हुआ है। अब 23% में अगर आप देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें काफी यानी गरीब तबका ही है, यानी वो ऑलरेडी गरीब है। अब आप वो गरीब को अंदर डालेंगे तो मुझे आप ये बताइए, अगर वो गरीब के पीछे उसके माँ बाप है तो वो क्या करेंगे? तो क्या आपका ये कहना है कि ये आपके मजहबी उमूर में मदाखलत है? बेशक बेशक। अरे जब हमारे पास अपना खुद इतना प्यारा सिस्टम है, हमें किसी और के पास जाने की जरूरत ही नहीं। उल्टा मुझे तो ऐसा लगता है कि उनको हमारे पास आना चाहिए कि हमको बताइए आपका सिस्टम कैसा है, हम भी आपका सिस्टम फॉलो करना चाहते हैं। शुक्रिया मैम। ये थी मोहतरमा बिन माजी। इनका साफ कहना है कि ट्रिपल तलाक के मामले में हुकूमत जो है तो मजहबी उमूर में मदाखलत कर रही है और मुस्लिम खवातीन इसे क़तई बर्दाश्त नहीं करेंगी। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू और अखबार। ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ सोशल मीडिया में अहानत आमेज मैसेज पोस्ट करने का मामला कर्नाटक के मुदखेड़ी शहर में मंजर-ए-आम पर आया। मुदखेड़ी में आज ईसाई बरादरी के लोगों ने एहतजाज किया। अहानत आमेज पैगाम जारी करने वाले रविंद्र पाटिल को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया गया। रोमन कैथोलिक एसोसिएशन के तहत ईसाई तबके के लोगों ने एहतजाजी रैली निकाली। सेंट माइकल चर्च ने डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर तक रैली निकाली और याददाश्त पेश की। एहतजाजियों ने इल्जाम आयद किया कि रविंद्र पाटिल नामी शख्स ने फेसबुक में ईसा मसीह के ताल्लुक से मुतनाज़ा पैगाम जारी किया है। इससे ईसाई तबके के जज्बात को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है। एहतजाजियों ने फौरी तौर पर रविंद्र पाटिल को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर ने एक बार फिर असर दिखाया है। दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गुलबर्गा के अहाते में मौजूद मस्जिद अफजल खान को दोबारा नमाज के लिए खोल दिया गया है। 17वीं सदी की इस मस्जिद के मिंबर मेहराब से एक बार फिर अल्लाह अकबर, हय्या अलस्सलाह और हय्या अलल फलाह की सदाएं गूंज रही हैं। मस्जिद दोबारा आबाद हो गई है, नमाजें फिर से होने लगी हैं। कलामुल्लाह की पाक सदाएं एक बार फिर इस खूबसूरत मस्जिद से उठने लगी हैं। जिन लोगों को इस बात की शिकायत थी कि मस्जिद बंद है, अब अल्हम्दुलिल्लाह चालू हो गई है। 5 वक्ता नमाजें इसमें दारुल उलूम दीनिया मदरसा के बच्चे, तकरीबन 40 बच्चे यहाँ पर आकर नमाज़ पढ़ते हैं। अलबत्ता इमामत और मौज़नी भी बच्चे, जिन बच्चों में जो बड़े हैं वो बच्चे इमामत वगैरह कर लेते हैं। मियां मुद्दिब साहब हैं, वो निगरानी करते हैं। आपको बता दें कि ये तारीखी मस्जिद गुज़िश्ता कई दहाइयों से बंद थी। यहाँ पर नमाज होना तो दरकिनार, इसको बंद करके स्टोर रूम में तब्दील किया गया था, जिसमें अलमीरा के अलावा रद्दी के बंडल रखे हुए थे। न्यूज़ 18 उर्दू ने इस बंद मस्जिद के ताल्लुक से खबर नश्र की थी, जिसके बाद मस्जिद हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब का गहवारा समझा जाता है क्योंकि इस मुल्क में मुख्तलिफ तहजीबों के मानने वाले लोग एक दूसरे के जज्बात का एहतराम करते हैं, जिसकी वजह से भाईचारे का माहौल बना रहता है। ऐसी ही एक बेहतरीन मिसाल नांदेड़ के देवदास कदम ने पेश करते हुए अपनी मादरी जबान मराठी होने के बावजूद अपने बेटे की शादी का दावतनामा उर्दू में छपवाया है, ताकि मुस्लिम दोस्तों को अपनाइयत का एहसास दिलाया जा सके। फिरका परस्त ताकतें जहां एक तरफ इश्ताल अंगेज बयानात के जरिए मुल्क के माहौल में फिरका वादियत का जहर घोलने की कोशिशें कर रही हैं, तो दूसरी तरफ कई गैर मुस्लिम अफराद इंसानियत और भाईचारे को फरोग दे रहे हैं।
ऐसी एक मिसाल नांदेड़ में देवीदास कदम ने पेश की है। देवीदास कदम ने अपने बेटे डॉक्टर सचिन कदम की 1 जनवरी 2019 को होने वाली शादी के दावतनामे को मराठी जुबान के साथ साथ उर्दू जबान में भी छपवाया है। सर, उर्दू में पत्रिका छपने का उद्देश्य यही था जिन लोगों के अच्छे सोच है, जो लोग उर्दू से नज़दीक है, वो लोग कुरान शरीफ पढ़ के मस्जिद में जाते, उनके अच्छे विचार है, वो अच्छे विचार लोग आके मेरे बच्चों को दुआ दे। देवीदास कदम के दोस्त अहबाब में एक बड़ी तादाद मुसलमानों की भी है, जिसकी वजह से उनके जहन में ये ख्याल आया कि जब मुसलमान अपने बच्चों की शादी करते हैं तो गैर मुस्लिम दोस्तों को मदऊ करने के लिए हिंदी और मराठी और अंग्रेजी में दावतनामे छपवाते हैं, तो मुसलमानों को मदऊ करने के लिए हमें भी उनकी मादरी जुबान उर्दू का ख्याल रखते हुए उर्दू में दावतनामा छपवाना चाहिए। देवीदास कदम का मानना है कि जबान किसी भी तबके की जागीर नहीं होती, इसलिए जबानों को मजहबी खानों में नहीं बांटना चाहिए। कोई सी भी लैंग्वेज किसके बाप की जागीरी नहीं है। मराठी मराठों की जागीरी नहीं है, उर्दू मुसलमानों की जागीरी नहीं है। सब लैंग्वेज एक समान है और लैंग्वेज को सबने अच्छा दर्जा देना चाहिए। इस उद्देश्य मैंने उर्दू को अच्छा दर्जा देके रुखा छापा। देवीदास कदम पाटिल के जहन में ये ख्याल आया कि बेटी की शादी का दावतनामा उर्दू में छापना है, तो इन्होंने अपने करीबी दोस्त मोहम्मद अशफाक हुसैन से मुलाकात की और इन्हें अपने इरादे से वाकिफ करवाया। तो देवीदास कदम साहब को मैं पिछले 4-5 साल से जो भी हमारी डिस्कस होती है, किसी न किसी तरह से समाज में जो नफ़रत की दीवार है उसको कम करने की कैसा न कैसा कोशिश अलग अलग तौर पे और भी कर चुके हैं। उसमें इत्तेफाक से उनके बेटे की ये शादी आ गई। शादी में उनका अपना प्रपोजल था कि अशफाक में मुस्लिम दोस्तों के लिए उर्दू रुखा छापना है और उसमें आपको मेरी मदद करना पड़ेगी। मैंने बोला हर तौर पर हम तैयार है। तो उन्होंने पूरा जो मैटर आज उर्दू में बने हुआ है, वो पहला सब्जेक्ट उन्होंने मराठी में बना के लाए, उन्होंने अपने तौर पे मुकम्मल तौर पर बना के लाए और मैंने सिर्फ उसका ट्रांसलेशन करा। देवीदास कदम का कहना है कि आज मुल्क में जिस तरह से नफरत का माहौल तैयार किया जा रहा है, ऐसे माहौल में मोहब्बत का पैगाम देने के लिए मैंने ये कोशिश की है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए नांदेड़ से जमीर अहमद खान की रिपोर्ट।